Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I welcome you all in today's online session. As you know that we are discussing analytical chemistry these days, our today's topic is UV visible spectroscopy. So in today's lecture, we will discuss UV visible spectroscopy, principle of UV visible spectroscopy, types of transitions that occur in UV visible spectroscopy, and then applications of UV visible spectroscopy. Now, what is the principle of UV visible spectroscopy? Firstly, you need to remember that the UV radiations extend from 10 nanometer to 400 nanometer, and the visible radiation region extends from 400 to 900 nanometer. तो जो यूवी रीजन है उसकी रेंज होती है 10 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर तक, और विजिबल रीजन जो होता है उसकी रेंज होती है 400 टू 800 नैनोमीटर. तो कलेक्टिवली आप ये कहते हैं कि 10 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर तक यूवी विजिबल रीजन्स हुआ करते हैं. अब अगर आप 1000 टू 400 नैनोमीटर का जो यूवी रीजन है उसको स्टडी करें तो यू विल कम टू नो कि 200 नैनोमीटर टू 400 नैनोमीटर का जो रीजन है यू कॉल इट एज नियर यूवी रीजन, whereas below 200, that is from 10 nanometer to 200, the region is termed as far UV region. Far UV spectroscopy is studied under vacuum conditions, and the common solvents used for preparing sample to be analyzed is either ethyl alcohol or hexane. Dear students, this slide is very important because it is showing you the UV visible range of spectrum. Now it has been mentioned here that UV visible spectroscopy, UV spectroscopy is also known as electronic spectroscopy because जब आप अल्ट्रावायलेट रीजन में रेडिएशंस को अब्जॉर्ब करते हैं तो व्हाट हैपन्स एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होती हैं फ्रॉम लोअर energy molecular orbitals to the higher energy molecular orbitals. Therefore, it is also termed as electronic spectroscopy. It involves the transition of electrons within a molecule or ion from a lower to higher electronic energy levels or vice versa by absorption or emission of radiations falling in the UV visible range. तो असल में ये यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है जो ऊपर हेडिंग में हाली अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी मेंशन है. यू नीड टू रिमेंबर दिस इज़ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी विच इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी because in fact the absorption of UV visible radiations by a molecule results in the electronic transitions from lowest occupied molecular orbitals to the highest unoccupied to the lowest unoccupied molecular orbitals. अच्छा, मैं ये एक स्टेटमेंट है आपकी बुक की जिसको रिपीट करने जा रही हूँ यहाँ पर, और ये जब आपका आज का लेक्चर एंड होगा तो ये स्टेटमेंट जो है आपको जस्टिफाई हो जाएगी जब मैंने कहा कि in fact the absorption of UV visible radiation by a molecule results in the electronic transitions from highest occupied molecular orbitals to the lowest unoccupied molecular orbitals. तो आप इस स्टेटमेंट को नोट डाउन कर सकते हैं. आज के लेक्चर के एंड पर हम इसको जस्टिफाई कर चुके होंगे इंशाल्लाह. अब आप देख सकते हैं कि विजिबल रेंज जो होती है वो 400 टू 800 नैनोमीटर्स है. नियर यूवी रीजन इज़ 200 to 400 nanometer and far UV region is 150 to 200 nanometer, and it has been shown through this diagram as well कि जब आप लेफ़्ट टू राइट स्टडी करेंगे इस सीक्वेंस को जो गिवन है आपको यूवी विजिबल रेंज के लिए, तो मूविंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रीजन टू द विजिबल रीजन द वेवलेंथ विल इंक्रीज एंड द एनर्जी विल डिक्रीज. Now coming towards the electronic transitions that occur by the absorption of UV visible radiations by molecules. So firstly you need to remember over here the types of electrons present in the molecules. Dear students, there are three kind of atoms present in the electrons present in a molecule. ये molecule आपको शो किया जा रहा है. दिस इज़ अ मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड. इसके अंदर 3 किस्म के इलेक्ट्रॉन्स आपको नज़र आ रहे हैं. वो इलेक्ट्रॉन्स दोज आर रिजाइडिंग इन सिग्मा
bonds are sigma orbitals and the other electrons are pi electrons, and then अनशेयर्ड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ने n से शो किया जा रहा है। तो यहाँ तक आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि इस मॉलिक्यूल के अंदर 3 किस्म के इलेक्ट्रॉन्स आपको नज़र आ रहे हैं। वो इलेक्ट्रॉन जो कि सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन जो पाई बॉन्ड बना रहे हैं, और वो इलेक्ट्रॉन्स दोज आर नॉट बीइंग शेयर्ड। जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं जो लोन पेयर की फॉर्म में मौजूद हैं ऑक्सीजन के ऊपर, दीज आर टर्म्ड एज नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर एन इलेक्ट्रॉन्स। नाउ डियर स्टूडेंट्स, इन 3 किस्म के एटम्स की बेस पे इस मॉलिक्यूल के अंदर जो मोलेकुलर ऑर्बिटल्स हैं वो भी कैसे होंगे। फर्स्ट ऑफ़ ऑल आप इस स्लाइड को स्टडी करना शुरू करेंगे फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट, जहाँ पर नेम्स मेंशन हैं। तो देखें सबसे नीचे बॉटम पर जो मेंशन है वो है सिग्मा मोलेकुलर ऑर्बिटल। ये मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल्स हैं जिन्हें मोलेकुलर ऑर्बिटल्स कहा जाता है। एमओटी को स्टडी करते हुए फर्स्ट ईयर में मैंने आप लोग को बड़ी डिटेल से मोलेकुलर ऑर्बिटल के बारे में बताया। नाउ यू नीड टू रिमेंबर कि बिल्कुल लोएस्ट लेवल पर जो आपको बनी हुई एक लाइन नज़र आ रही है, दैट इज़ इंडिकेटिंग बॉन्डिंग सिग्मा मोलेकुलर ऑर्बिटल। उसके ऊपर जो नज़र आ रहा है वो है बॉन्डिंग पाई मोलेकुलर ऑर्बिटल। ठीक है, तो सिग्मा जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बॉन्डिंग सिग्मा मोलेकुलर ऑर्बिटल में होते हैं, और पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बॉन्डिंग पाई मोलेकुलर ऑर्बिटल्स में हुआ करते हैं। इन द सेम वे जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नॉन बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल n जो है इसमें रिसाइड करते हैं। आफ्टर दैट ऊपर जो 2 ऑर्बिटल्स आपको नज़र आ रहे हैं, वन इज़ पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग पाई मोलेकुलर ऑर्बिटल है, एंड देन एंटी बॉन्डिंग सिग्मा मोलेकुलर ऑर्बिटल है जिसको पाई स्टार और सिग्मा स्टार से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। एंड यू नीड टू रिमेंबर कि इनकी एनर्जी हाई होती है। ये चीज़ तो एमओटी को पढ़ाते हुए मैंने बड़ी डिटेल में बताई थी कि सिग्मा और पाई जो या फिर किसी किस्म के भी जो बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी हमेशा कम होती है एज़ कम्पेयर टू एंटी बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल्स। तो ये एक सीक्वेंस में, एनर्जी के एक सीक्वेंस में इन सारे के सारे मोलेकुलर ऑर्बिटल्स को ड्रॉ किया गया है। अब ट्रांजिशन की टाइप्स थ्योरेटिकली जब हम स्टडी करते हैं, थ्योरेटिकली जब हम पॉसिबिलिटीज़ देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल से किस ऑर्बिटल में मूव कर सकता है, तो हम ये कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स सिग्मा में रिसाइड कर रहे होते हैं, जब उनको बड़ी हाई एनर्जी रेडिएशंस वो ऑब्जॉर्व करते हैं वैक्यूम यूवी रीजन की, तो जो कि बिलो 200 नैनोमीटर है, यानी बहुत ज़्यादा एनर्जी वाली रेडिएशन जब ऑब्जॉर्व करते हैं तो वो प्रमोट हो जाते हैं सिग्मा बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल से बिल्कुल सबसे ऊपर वाले सिग्मा स्टार जो कि एंटी बॉन्डिंग सिग्मा मोलेकुलर ऑर्बिटल है वहाँ पर। तो ये ट्रांजिशन ऐसी ट्रांजिशन है जो सबसे ज़्यादा जिसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। देयरफॉर दिस ट्रांजिशन अकर्स ओनली व्हेन अ मॉलिक्यूल absorbs radiations in vacuum UV region, जिसको जो कि बिलो 200 नैनोमीटर है, जिसको आप फार यूवी रीजन भी कहते हैं। देन थ्योरेटिकली हम स्टडी करते हैं कि अगर सिग्मा से सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं तो सिग्मा से पाई स्टार में भी मूव कर सकते होंगे। तो थ्योरेटिकली हमने ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर ड्रॉ की है, बट डू रिमेंबर दैट दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं होता। सिग्मा से सिर्फ सिग्मा स्टार में मूव कर सकते हैं, सिग्मा से पाई स्टार में मूव नहीं कर सकते। अब थर्ड जो ट्रांजिशन यहाँ पर शो की गई है मैं उसको स्टडी करती हूँ कि पाई से सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन। अब हम पाई इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं। सिग्मा की हमने बात कर ली कि सिग्मा की 2 पॉसिबिलिटीज़ थ्योरेटिकली हमने स्टडी की हैं, सिग्मा टू सिग्मा स्टार एंड देन सिग्मा टू पाई स्टार, बट आई हैव टोल्ड यू दैट सिग्मा टू पाई स्टार इज़ नॉट पॉसिबल। फिर हम पॉसिबिलिटी देखते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स की कि पाई इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव। थ्योरेटिकली ये पॉसिबिलिटी हम निकालते हैं कि माइट पॉसिबल दे कैन मूव फ्रॉम पाई टू पाई स्टार एंड पाई टू सिग्मा स्टार। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, द मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम पाई टू सिग्मा स्टार इज़ नॉट पॉसिबल,
बट पाई टू पाई स्टार, ये जो लास्ट सेकंड लास्ट ट्रांजिशन जो की है पाई टू पाई स्टार, दिस इज़ पॉसिबल। तो मैं किस सीक्वेंस में आपको पढ़ा रही हूँ, मैं एक एनर्जी लेवल के इलेक्ट्रॉन को ले रही हूँ और उनकी पॉसिबिलिटीज़ बता रही हूँ कि सिग्मा टू सिग्मा स्टार पॉसिबल है, सिग्मा टू पाई स्टार पॉसिबल नहीं। सिमिलरली पाई टू सिग्मा स्टार इज़ नॉट पॉसिबल, बट पाई टू पाई स्टार इज़ पॉसिबल। अब लास्टली आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द इलेक्ट्रॉन्स रिजाइडिंग इन नॉन बॉन्डिंग मोलेकुलर ऑर्बिटल n। तो इसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पॉसिबिलिटी रखते हैं, दे कैन आइदर मूव फ्रॉम n to sigma star and they can also move from n to pi star depending upon the uh, types of radiations they are absorbing. तो डियर स्टूडेंट्स, ये थ्योरेटिकल एक प्लॉट है जो शो कर रहा है कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हम स्टडी कर सकते हैं ट्रांजिशंस की, जिसमें मैंने आपको ये बताया है कि सिग्मा टू सिग्मा स्टार इज़ पॉसिबल, पाई टू पाई स्टार इज़ पॉसिबल, एंड एन टू सिग्मा स्टार एंड एन टू पाई स्टार इज़ पॉसिबल। Whereas two sort of radiations, sigma to pi star and pi to sigma star is not possible. ये सारी की सारी रेडिएशंस की एक लिस्ट यहाँ पर भी बनाई गई है, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार, एन टू सिग्मा स्टार एंड एन टू पाई स्टार। ये पहली चार तो पॉसिबल होती हैं, बट सिग्मा टू पाई स्टार एंड पाई टू सिग्मा स्टार इज़ नॉट पॉसिबल। अब वन बाय वन हम इनको डिटेल में स्टडी करने जा रहे हैं कि सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस कब होती हैं। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम molecular orbital is excited to corresponding anti-bonding orbital that is sigma star. The energy required is large for this transition. सबसे ज़्यादा एनर्जी इस ट्रांजिशन के लिए चाहिए होती है, इसलिए सबसे कम वेवलेंथ वाली रेडिएशन ये ट्रांजिशन जो है वो करवा सकती है। एंड these include the radiations in vacuum UV region दैट इज़ बिलो 200 नैनोमीटर। तो यहाँ शो भी किया जा रहा है कि मीथेन हैज़ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ओनली एंड कैन अंडरगो सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन एंड शो अब्जॉर्बेंस मैक्सिमा एट 125 नैनोमीटर। इन्होंने एग्जैक्ट इन केस ऑफ मीथेन आपको वैल्यू भी दे दी है कि 125 नैनोमीटर के ऊपर सिग्मा टू सिग्मा स्टार होगा, बट जनरली आपको याद रखना है कि इट अकर्स बिलो 200 नैनोमीटर इन केस ऑफ एनी मॉलिक्यूल। Now coming towards pi to pi star, pi electrons in bonding orbital is excited to corresponding antibonding orbital that is pi star. The compounds containing multiple bonds like alkenes, alkynes, carbonyls, nitrile, aromatic compounds, etc. undergo sigma to sigma star transitions. ऐसे मालिक्यूल्स जिनके अंदर मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं, जिनके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन शो करते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, इन सारे एग्जांपल में से अगर एल्कीन की एग्जांपल मैं लूँ तो जनरली अब्जॉर्ब इन द रीजन ऑफ 170 टू 205 नैनोमीटर, 170 से 205 नैनोमीटर तक की रेडिएशंस को अब्जॉर्ब करें। अगर एल्कीन्स जिनमें डबल बॉन्ड होता है तो उनके इलेक्ट्रॉन्स मूव कर जाते हैं, ट्रांजिशन होती है फ्रॉम पाई टू पाई स्टार। Now coming towards n to sigma star, saturated compounds containing atoms with lone pair of electrons like oxygen, nitrogen and sulfur and halogens are capable of n to sigma star transitions, and these transitions usually require less energy than sigma to sigma star transitions, and the number of organic functional groups with n to sigma star peak in UV region is small, that is 150 to 250 नैनोमीटर। देखिए, जब मैंने सिग्मा टू सिग्मा स्टार से शुरू किया था एक सीक्वेंस में पढ़ना, एंड देन पाई टू पाई स्टार एंड देन एन टू सिग्मा स्टार, तो आप ये देख सकते हैं इनकी जो रेंज मैं आपको शो कर रही हूँ, अब्जॉर्प्शन रेंज, आपने इसको कंपेयर करते जाना है और ये अंदाज़ा लगाना है कि किसके केस में सबसे ज़्यादा एनर्जी की रेडिएशंस आपको चाहिए होती हैं। एंड पर मैं समरी भी कर दूँगी इस चीज़ की। Now coming towards n to pi star, an electron from non-bonding orbital is promoting to anti-bonding pi star orbital. Compounds containing double bond involving heteroatoms like C double bond O, C triple bond N and N double bond O undergo such transitions. So n to pi star transitions require minimum energy and show absorption at longer wavelength around 300 nanometer. अब ये जो दो ट्रांजिशन के टाइप्स हैं कि सिग्मा से पाई स्टार में चले जाना और पाई से सिग्मा स्टार में ट्रांजिशन होना,
दीज आर पॉसिबल ओनली थ्योरेटिकली, जो थ्योरेटिकली मतलब कि पॉसिबिलिटीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें हम इसको देखते हैं, बट प्रैक्टिकली दिस इज़ नॉट पॉसिबल, राइट. सो these transitions are not possible. Actually, that was the main point I wanted to share over here. Thus, n to pi star and pi to pi star electronic transitions show absorptions in region above 200 nanometer, which is accessible to the UV visible spectrophotometer, and the UV spectrum is of only a few rod of absorption. Now this is a diagram from your book. ये important diagram इस हवाले से है because it is giving you a summary. ये आपको summary दे रही है उन 4 transitions की जो possible होती हैं, और जो 2 सिर्फ थ्योरेटिकली पॉसिबल थी और असल में नहीं होती, उनको उन्होंने एक्सक्लूड कर दिया हुआ यहाँ पर. सो दिस इज़ द डायग्राम आई एम शेयरिंग विद यू पीपल. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग समरी, कि जब आप लमसम इस टॉपिक को पढ़ लें तो आपको ये पॉइंट बेसिकली पता होना चाहिए कि सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशंस आर पॉसिबल, और ये वो ट्रांजिशन है जिनके लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है बिलो 200 नैनोमीटर की वेवलेंथ इसके लिए चाहिए होती हैं. दोज आर टर्म्ड एज दो आर वैक्यूम यूवी रेडिएशंस. उसके बाद जो 3 पॉसिबल टाइप ऑफ रेडिएशंस हैं वो हैं पाई टू पाई स्टार, एन टू पाई स्टार एंड एन टू सिग्मा स्टार. डियर स्टूडेंट्स, ये 3 किस्म की जो रेडिएशन हैं इनके लिए आपकी बुक में एक एनर्जी सीक्वेंस शो किया गया है और बताया गया है कि सबसे ज़्यादा जो एनर्जी चाहिए होती है इन तीनों किस्म की रेडिएशंस में वो चाहिए होती है एन टू सिग्मा स्टार. एन टू सिग्मा स्टार की एनर्जी सबसे ज़्यादा है, एंड देन पाई टू पाई स्टार, एंड देन कम्स एन टू पाई स्टार. तो जो लास्ट 3 एरोज़ आपको शो किए जा रहे हैं, जब मैं इनको कंपेयर करूं तो इनमें सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है जिन रेडिएशंस को, जिन ट्रांजिशंस को, वो हैं एन टू सिग्मा स्टार. देन कम्स पाई टू पाई स्टार, एंड देन कम्स एन टू पाई स्टार. So that was all about the basic concept of UV visible spectroscopy. Now coming towards the application of UV visible spectroscopy, dear students, you need to remember the applications of UV visible spectroscopy regarding qualitative and quantitative analysis, detection of impurities, detection of isomers, and determination of molecular weights. So talking about qualitative and quantitative analysis, it is used for characterizing aromatic compounds and conjugated olefins. It can be used to find out molar concentration of the solute under study. Then coming towards detection of impurities, it is one of the important method to detect impurities in organic solvents, and it is also used for the detection of isomers. And then lastly, determination of molecular weight using Beer's-Lambert law is also possible using UV visible spectroscopy, but this Beer's-Lambert law is not the part of your syllabus. So that is all for today. Thank you so much.